کہ بنا یسوع مسیح کے لہو کو جانے اور اس سے دھلے بنا آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک کرسچن جو ہے وہ لہو کے بنا، یسوع مسیح کے لہو کے بغیر، اس سے دھلے بنا اس کی عبادت ادھوری ہے، وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ۔ خروج کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت میں لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط یعنی کہ مس کیریج ہوگا، اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ سب کلیسیا کہیں آمین۔ عبرانیوں 9 باب اور اس کی 14 آیت کو دیکھو۔ عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 14 آیت۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ ہاللیلویہ۔ پھر سے سنو، تو مسیح کا خون، کس کا خون؟ یسوع مسیح کا خون ازلی روح کے یعنی کہ روح القدس کے وسیلہ سے، مسیح کے خون نے اپنے آپ کو پیش کیا پاک روح کی مدد سے، کس کے سامنے؟ یہوہ خدا کے سامنے۔ یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر پاک روح کی مدد سے اپنے قیمتی لہو کو خدا باپ کے آگے پیش کیا، گزرانہ قربانی کے طور پر انڈیلا چڑھایا، بہایا۔ ہاللیلویہ۔ لکھے تو مسیح کے خون نے، جس نے اپنے آپ کو پاک روح کے وسیلہ سے خدا کے آگے پیش کیا ہے، وہی پاک خون تمہیں تمہارے مردہ کاموں سے پاک کرے گا۔ وہ پاک خون تمہیں کیا کرے گا؟ تمہارے مردہ کاموں سے، جسم کے کاموں سے، جو غلطیوں 5 اس کی 19 آیت میں، اگر نوٹ کر لو اپنے پاس، اگر آپ کو نکالو اس کو ریڈ کرنے کے لیے، غلطیوں 5 اس کی 19 آیت میں، تو یسوع کا خون کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کرے گا۔ کیوں پاک کرے گا؟ تاکہ تم زندہ خدا کی عبادت کر سکو۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے شریعت میں اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم کیا کرنا؟ میری عبادت کرنا۔ ہاللیلویہ۔ میں تمہیں مصر کی غلامی سے کیوں نکال رہا ہوں؟ کیوں میں تمہیں فرعون سے بچاؤں؟ کیوں میں تمہاری فریاد کو سنوں؟ کیوں میں تمہیں ہیل کروں؟ کیوں میں تمہیں آزاد کروں، چھڑاؤں، لے کے جاؤں یہاں سے غلامی سے؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے ہیل کر، مجھے چنگا کر، مجھے فری کر، مشکلوں سے نکال۔ وہ کیوں نکالے؟ اس لیے وہ آپ کو نکالے گا تاکہ آپ نکلنے کے بعد اس کی عبادت کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ حنا کو بیٹا چاہیے تھا، کیوں چاہیے تھا؟ تاکہ وہ خدا کا پروفٹ بنا سکے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا جا اور فرعون سے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ جانے کا ریزن کیا ہوگا؟ وہ جب وہ پوچھے ہاں کیوں جانے دوں، تو اسے کہنا کہ میرے لوگوں کو یہوہ فرماتا ہے جانے دے تاکہ وہ میری کیسے کیا کرے؟ عبادت کر سکے۔ تو ایک مسیحی کو جب بھی آپ کو اگر گناہ کی زندگی سے خدا نے بلایا ہے، تاریکی کے کاموں سے روشنی میں بلایا ہے، تو کسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ اس کی عبادت کر سکیں، دوسرے نمبر پر آپ اپنی بلاہٹ پر چل سکیں۔ اور آپ کی بلاہٹ، پہلی بلاہٹ یہ ہے کہ آپ اپنا بدن اپنے خدا کو پیش کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ پولس رسول نے کہا 1 کرنتھیوں 12 باب میں، اپنے آپ کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ۔ تمہارے بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ ہاللیلویہ۔ سنڈے بھی سنا آپ نے یہ پریچ، اسے پہلے کئی بار تھرسڈے کو یہ آپ نے سنا، وینسڈے کو سنا کہ تمہارا بدن اس کی ہیکل ہے۔ اگر تم سیوا کرنا چاہتے ہو، خدمت کا تمہیں شوق ہے، پر تم اس کا بدن اس کو نہیں دیتے، تم اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویہ۔ تم اپنی مرضی اپنی باڈی پہ چلاؤ کہ میرا بدن ہے، میری مرضی، میں جلدی اٹھوں، دیر سے اٹھوں، میں نہ سوؤں یا نہ
खाना खाऊं, रोजे रखूं या नास रखूं, दुआ करूं या ना, मेरी मर्जी। तो बाइबल कहती है आपके ऊपर आपकी कोई मर्जी नहीं, आप लहू से खरीदे गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, साथ बैठी भाई से और अपने साथ बैठी बहन से और अपने साथ बैठे भाई से कहो कि तुम अपने नहीं, तुम कीमत से खरीदे गए, इसलिए तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही सच है। आपको मालूम है, यही सच जानने में मसीही लोग गलती करते हैं। और जब ये मालूम नहीं होता या आप इस बात को जान के अनदेखा करते हैं और समझते नहीं और इस बात में सीरियस नहीं होते, वो अपने बदन को जिस्म के कामों में लेके जाते हैं, नशेबाजी में, चुगली में, हाँ, बुरे कामों में, हर तरह की मुखालफत में, एबजोई में। वो उनको लगता है ऊपर की कमाई सब काम कर रही है, हमारी अपनी मर्जी। बाइबल कहती है यीशु का खून तुम्हें मुर्दा कामों से पाक करता है ताकि तुम खुदा की इबादत कर सको। इसका मतलब अगर हम जिस्म के कामों में रहें तो हमारी इबादत बेकार है और खुदा की निगाह में वो वैल्यूएबल नहीं है, या कह लो कि काउंट ही नहीं की गई। ये बिल्कुल उस तरह है कि आप नौकरी पर तो जाएं पर आपकी हाजिरी कोई नहीं लगती तो सैलरी नहीं मिलेगी। मैं खुदा के रूह का थैंक्स करती हूँ कि वो आपके लिए ऐसी, मैं कभी भी एग्जाम्पल नोट नहीं करके आती कि मैंने आज ये वाली, हाँ कई बार खुदा का रूह पहले मुझे कोई एग्जाम्पल देता है कि ये इस तरह से समझाना, पर मोस्टली वो यहीं पर आपके लिए एग्जाम्पल बताते हैं। हालेलुया। ये बिल्कुल वैसे आप जिस्म के कामों में रहकर दुआ करें, रोजे रखें और साथ साथ जिस्म के काम करें। निकाला, किसी ने निकाला गलतियों 5 बाब। आप साथ साथ चोरी करें, नशाबाजी करें, जिस्म के सब काम करें, झूठ बोलें, मुखालफत करें, निंदा करें और साथ साथ आप 40 रोजे रखें, आप क्वायर में सबसे बढ़ के वर्शिप करें, आप दायकी दें, आप बाकी के काम करें। लेकिन अगर जिस्म के कामों से बाहर नहीं आते तो आपकी इबादत एक्सेप्टेबल नहीं है। हालेलुया। शायद ये आपको बहुत कड़वा सच लगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताने के लिए आई हूं कि यही सच है। और अगर आज तक बाइबल कहती है गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है, यानी कि अगर वो जनाकार है, चोरी है करते हैं, फरेब करते हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, कुछ भी जो भी जिस्म के काम उसकी ज़िंदगी में, और साथ में 3 बजे फिक्स टाइम पे जाके या 4 बजे या रात को 10 बजे वो फिक्स टाइम पे बैठ के प्रेयर भी करता है, तो बाइबल कहती है उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए दुआ करने का फैसला आपका मजबूत होना चाहिए कि यहाँ गुनाह छोड़ दो या दुआ छोड़ दो। पर गुनाह को छोड़ने में आपका फ़ायदा है, दुआ को छोड़ने में आपके लिए सिर्फ मौत है और ज़्यादा आप शैतान के घेरे में आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप कहें कि साथ साथ दुआ भी चलती रहे और साथ जिस्म के काम भी चलते रहें, तो ऐसी इबादत आपके खालिक को, यानी कि खुदा को, जिसने आपको बनाया और जिसने आपके लिए हुक्म दिया कि मेरे लोगों से कहना कि खुदावंद खुदा फरमाता है तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। हालेलुया। तुम मेरे हुक्मों पर चलना, मैं ब्लेसिंग्स तुझे अपने आप फॉलो करेंगी। आपको मालूम है अगर आप दायकी देने वाले हैं तो आपको कभी भी फाइनेंशियली बरकत या बढ़ने के लिए आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हर एक हुक्म के साथ एक बरकत जुड़ी हुई है। जैसे ही आप उस हुक्म को पूरा करते हैं वो बरकत अपने आप आपको फॉलो करती है। बाइबल में लिखा है जो खिदमत करते हैं, अगर तुम यहोवा की, आसमानी खुदा की, यीशु मसीह की खिदमत करोगे तो तुम्हारी सेफ्टी दूसरे लोगों से ज़्यादा होगी। इसके लिए तुम्हें बैठ के प्रेयर नहीं किया, खुदावंद मैं जा रहा हूँ तू मेरी मदद करना। नो, ऑलरेडी बेशक तुम्हें मांगने प्रेयर करनी है, पर ऑलरेडी जब तुम खिदमत में हो और जेन्युइन हो, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी सेफ्टी दूसरों से ज़्यादा है। हालेलुया। अगर आप ज़बूर को पढ़े तो, और अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ है तो आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मांगने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एंजल आपके घर पर प्रोटेक्शन के लिए ड्यूटी लगी हुई। हालेलुया। ज़बूर में लिखे हैं खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। रहेगा नहीं, रहता है। हालेलुया। बाइबल एक ऐसा कह ले कि इतनी खुदावंद के कुदरत से भरा उसका
ایک ایسی بلیسنگ ہے ہمارے پاس، سب سے بڑی بلیسنگ ہے ہمارے پاس کہ خدا کا لکھا ہوا کلام ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر اس کو جانتے نہیں، یہ تلوار ہے، سب کو معلوم ہے، ہاللیلویا، لیکن اگر آپ اس تلوار کو چلانا نہیں جانتے تو یہ جتنی مرضی طاقتور ہے، پاورفل ہے، آپ کے دشمن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنی بائبل کو پڑھتے نہیں پر اسے سرہانے رکھ کے ضرور سوتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح ہے۔ جب ساؤل، کتنے ساؤل بادشاہ کو جانتے ہیں؟ ساؤل بادشاہ، اس کے پاس تلوار تھی اور وہ غار میں جا کر سو گیا اور اس کی تلوار اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ داؤد آیا اور وہ داؤد اس کو مار بھی سکتا تھا، یہ اور بات ہے کہ داؤد کے اندر خدا کا خوف تھا، وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوئے ہوئے ممسو کے پاس یا سوئے ہوئے سپاہی کے پاس اس کی تلوار کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، اس کے پاس پڑی اسی کی تلوار سے اس کا دشمن اس کو مار سکتا ہے۔ اور یہی آج ابلیس کرسچن لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، ان کے گھر میں یہ 2 دھاری تیز تلواریں ہیں، پر جب وہ اس کو پڑھتے نہیں، جانتے نہیں اور شیطان کے خلاف چلاتے نہیں، ان کا دشمن اسی تلوار سے، کہہ لو کہ اسی کے تیرے خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ کے بدلے تجھے پنش ملے گی، تو سزا کا حقدار ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ فتح پاؤ اور ایک جیتے ہوئی زندگی جیو، تو اس کو پکڑ کر اس کو چلانا سیکھو، اس کو سرہانے رکھ کے سونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو سیو نہیں کرتی۔ تو یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ پڑھتے تو نہیں ہیں لیکن اس کو سرہانے رکھ کے سوتے، جی بائبل سرہانے رکھ لو تو شیطان نہیں آئے گا اور بدرو آئے گی نہیں ستانے کے لیے، یہ بالکل بے وقوفی ہے۔ آپ اس کو اسی بائبل کو کھول کر سونے سے پہلے پڑھ کے اور بول کے سو۔ بائبل کہتی ہے کہ تیرے ارد گرد 10,000 اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے پر تیرے نزدیک نہیں آئیں گے۔ آپ نے پڑھا، آپ نے فیض کیا اور اس کے بعد آپ سرہانے کے پاس رکھ کے سو تاکہ پھر ہوش آئے تو میں اس کو پڑھ سکوں، پھر شیطان نزدیک نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے پڑھتے نہیں سرہانے رکھ لیا تو یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرنے والی۔ سالوں سے پڑھی ہے نا گھروں میں، آج تک کچھ نہیں ہوا، یا ہوا ہے اپنے آپ؟ نہیں ہوگا۔ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں اور اس میں سے چلنا سیکھیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے، جو جتنی جلدی مسیحی سیکھ جائے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ زیادہ غفلت سے باہر آتا ہے۔ تو جسم کے کاموں کے ساتھ ساتھ جسم کے مردہ کاموں کو، اپنے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کیے بنا عبادت کسی کام کی نہیں، نہ ہی وہ قبول ہوتی ہے، پھر نہ ہی بیماری جاتی ہے، پھر نہ ہی روٹی پانی پر برکت آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میری عبادت کر، اور عبادت کرنے کے طریقے بھی بائبل مقدس میں خود یہوہ خدا نے، یسوع مسیح نے بتائے، سکھائے ہمیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے سکھائے اور روح القدس کے وسیلے رسولوں کے ذریعے ہمیں سکھائے۔ کیا لکھا ہے کہ یسوع کا خون تمہارے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ کس لیے پاک کرتا ہے؟ تاکہ تم زندہ خدا کی عبادت کر سکو۔ عبرانیوں 9:11 میں آپ نے پڑھا کہ تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، لہو سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ اب آپ کو اپنا خون بہانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے یسوع مسیح کا لہو بہہ چکا ہے۔ آپ کو اور کسی قربانے کی ضرورت نہیں، یسوع مسیح ہمارا فسح ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اپنا لہو نہیں بہانا، یسوع کا لہو ہمارے لیے بہہ چکا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 2 آیت کو دیکھو، 10واں باب اور اس کی 2 آیت۔ ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا۔ ہاللیلویا۔ جو عبادت کرتے ہیں ضروری ہے کہ ان کا دل لہو سے پاک کیا جائے۔ ہاللیلویا۔ تاکہ جب وہ پریئر میں بیٹھیں ان کا دل انہیں الزام نہ دے۔ اگر تو آپ کا ضمیر زندہ ہے تو جب آپ پریئر میں جانے لگیں گے تو پریئر میں جانے سے پہلے آپ کے اندر سے آواز آئے گی، نہیں، تو نے آج اپنے اس بھائی کو دکھ دیا، تو نے آج اپنی اس بہن کو ستایا، تو آپ کے اندر معافی کے لیے آپ کا دل آپ کو اکسائے گا، آپ کو بے چین کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ کے اندر بے چینی لگے گی، آپ کا ضمیر آپ سے بات کرے گا کہ نہیں، تو معافی مانگ، تو نے غلطی کی،
तुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तूने खिलाफत कर दी, तूने गाली दे दी, तुझे नहीं देनी थी, तूने माफ़ी मांगी हुई थी। हालेलुया, कितनों को समझ आए? तो आपका दिल आपको इल्ज़ाम देता है, नहीं तू माफ़ी मांग, नहीं तू जाकर उससे सुलह कर ले, नहीं तू खुदा की हज़ूरी में पहले जा और पहले अपने आप को माफ़ी मांग ताकि तू खुदा की इबादत कर सके, फिर तू प्रेयर में जा सके। हालेलुया। तो जब आप लहू को मांगते क्या खुदावंद मुझे माफ़ कर, हाँ मुझसे गलती, याद रखो जितने आप मसीह यीशु में नए मखलूक बन चुके हैं, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, गलती होगी, जब गुनाह हो जाए, जब गलती हो जाए, फ़ौरन बैठ जाओ। शैतान आपको ये दिखाएगा, नहीं तूने इतना बुरा लफ्ज़ कह दिया, नहीं तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, तू लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये देख क्या होगा, वो तो अब तू किसी काम का नहीं, तू मत कर, तू प्रेयर में नहीं जा, तू चर्च नहीं जा। हालेलुया। अब तू क्या वर्शिप करेगा, अभी तो तेरी लड़ाई हो गई थी। लेकिन आप बैठ जाओ और जाते ही बोलो, अपने मुंह से इकरार करके, दिल के अंदर नहीं, मुंह से इकरार करके, खुदावंद मैंने गलती कर दी, और मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था लेकिन मुझसे नहीं हुआ, मुझे माफ़ कर दे। हालेलुया। मुंह से इकरार करके, खुदावंद मैंने उसको ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था, मुझे रुकना चाहिए था, मुझे वेट करना चाहिए था। हालेलुया। और जब इस तरह जाके अपने मुंह से इकरार आप कर लेते हो और फिर कहते हो, खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि यीशु का खून मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है, ऐ यीशु के लहू मुझ पर आ, मुझे पाक कर, मैंने प्रेयर में जाना है, मुझे पाक कर, मैंने जाके बैठना है यीशु मसीह की हजूरी में। हालेलुया। मुझे पाक कर, मैंने बाइबल पढ़नी। तो इस तरह से आप शैतान को हराते हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप शैतान की आवाज़ को सुन लोगे तो आप पीछे चले जाओगे, आप बैक चले जाओगे। हालेलुया। जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बाइबल को खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ये आपको बताएगी नहीं कि किस वक्त तुझे क्या करना है। तो जब गलती हो जाए, पहली तो बात अपने आप को फुल कंट्रोल करना है, हमें सेल्फ कंट्रोल में आना है। लेकिन जब हम नए होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं, गलतियां होती हैं। हालेलुया। हमने भी बहुत सी चीज़ें सीखी और बहुत सी और ज़्यादा अगले लेवल पे जाने की और ग्रेस पा रहे और चीज़ें सीख रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप बढ़ते हैं, गलती होने पर कभी अपने आप को मत, हाँ पशेमान होना है, इकरार करना है, माफ़ी मांगनी है, तौबा मांगनी है, तौबा करनी है, माफ़ी मांग के ग्रेस मांगनी है, मुझ पे फजल कर, मैं आइंदा ना करूं। लेकिन वहाँ पर रुकना नहीं, कभी भी शैतान की बात को सुनकर वहाँ स्टक नहीं होना, वहाँ रुकना नहीं। क्या गाया अभी वर्शिप में हमने कि मेरा खुदावंद क्या हुआ, गिर कर भी उठ कर चला। यीशु मसीह का गिर कर उठने का जो मेन मकसद था कि वो मुझे और आपको सिखाए कि जब तू गिरे, तूने गिरे नहीं रहना, तूने गिरने के बाद उठना है। हालेलुया। तो गिर कर उठना आपको यीशु मसीह ने सिखाया, मुझे यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो गिरा, जब वो क्रूस की तरफ जा रहा था, सलीब को उठाए हुए कलवरी की पहाड़ी पर जा रहा था, वो गिरा, वो फिर उठा, वो वहाँ पर गिरा नहीं रहा। अगर वो गिरा रहता तो अपनी मंजिल तक ना पहुँचता, कफारा ना देता और मेरा और आपका छुटकारा ना हो। हालेलुया। अगर आप गिरे रहेंगे और शैतान को बोलने देंगे और नहीं उठेंगे तो दुश्मन कामयाब हो जाएगा और आपकी बुलाहट पूरी नहीं होगी। जो आपके वसीले खुदावन ने काम करने वो पूरे नहीं होंगे। तो वहीं पर उठ जाओ और वहीं पर माफ़ी मांगो, ताकत मांगो, ग्रेस मांगो और आगे बढ़ो। हालेलुया। अगर वहाँ पर यीशु मसीह ने ताकत को पाया, खड़े हुए, फिर से चलना शुरू किया, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। हालेलुया। तीनों बार जब वो गिरे तो वो उठ खड़े हुए और अपनी मंजिल, अपने टारगेट, अपनी बुलाहट की तरफ बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है क्या करो कि तुम अपने दिलों को पाक करो। कैसे पाक करो? यीशु मसीह के लहू को पुकारो, ऐ यीशु मसीह के लहू मुझे धो, मुझे पाक कर, मुझ पर आ। तेरे कलाम में लिखा है। हालेलुया। मेरे साथ नोट करो, पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। उसके आगे जाके रो, गिड़गिड़ाओ, पूरी तरह से माफ़ी मांगो कि खुदावन को यकीन दिलाओ, हाँ मुझे वाकई गलती का एहसास है। क्या दाऊद से गुनाह नहीं हुआ? कितना बड़ा गुनाह हुआ। उसकी सारी पकीज़गी का लेवल एक झटके में टूट गया। इतनी मेहनत से उसने खुदा के साथ इतना मजबूत रिश्ता बनाया, एक औरत के साथ जनाकारी करने के बाद उसकी पूरी
पाकीज़गी, मसीह के साथ रिश्ता, होली स्पिरिट की वो प्रेजेंस, सब कुछ बिखर गए। लेकिन क्या वो गिरा रहा? हालेलुया। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में हजारों साल पुरानी कहानियां लिखी हुई हैं। ये कोई एसएसटी की पुरानी किताब नहीं है जिसमें तारीख की बातें लिखी हुई हैं। जैसे पाकिस्तान की तारीख की बातें हैं, वो आज भी नौजवान पढ़ते तो उन्हें बोरिंग लगता है एसएसटी का सब्जेक्ट। तो ये एसएसटी का सब्जेक्ट नहीं है, ये जिंदा खुदा का कलाम है, जिसमें ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि आज जब हम गिरें तो हम उठना सीखें। हालेलुया। जब हम गिरें तो हमें यीशु मसीह का गिरना याद आए कि मुझे भी उठ खड़े होना है। जब हम पाप हो जाए, गलती हो जाए, हमें याद आए नहीं, दाऊद ने माफ़ी मांगी थी और यहोवा ने माफ़ कर दिया था, वो मुझे भी माफ़ कर देगा। वो आज भी तरस और रहम से भरा हुआ है। हालेलुया। जब आपके सामने ज़नाकारी की ऑफर है, गुनाह की ऑफर है, तो आपको याद है नहीं, मैंने नहीं गिरना, क्योंकि यूसुफ पर भी ये आजमाइश आई थी, वो नहीं गिरा। मैं नहीं गिरूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। तो इसीलिए सालों पुरानी ये कहानियाँ लिखी गई मेरे और आपके लिए, ताकि हम इनसे नसीहत पाएँ, तंबी पाएँ और इनको लेकर अपनी ज़िंदगी में टारगेट बनाकर ऐसे ही चलकर आगे बढ़े कि अगर नहीं मानेंगे खुदा की बात तो क्या नुकसान होगा, मानेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है जो हमें समझ आ जाए वही हमारा छुटकारा है। तो अगर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आपका छुटकारा हो रहा है। आप ग्रोथ करें, आप बढ़ेंगे मसीह यीशु में। हालेलुया। तो गलती जैसे ही हो जाए फौरन माफ़ी मांगो, फौरन इकरार करो, हाँ खुदावंद मुझसे हुआ। नाराज़गी हो जाए, जहन में रखो, ठीक है मुझे गुस्सा आया, इसकी गलती थी, मुझे गुस्सा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? सूरज के डूबने तक तेरी खफगी रहनी नहीं चाहिए। शाम ढलने से पहले पहले नाराज़गी खत्म, बात खत्म। हालेलुया। हालेलुया। तो जब इस तरह हम करेंगे, हम में दलेरी आती है। हालेलुया। खुदावंद देखता है, नहीं ये चलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे ताकत दूंगा, मैं इसे ग्रेस दूंगा ताकि ये और बढ़ पाए। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना में क्या लिखा? आप कह सकते हो, यीशु आपके कलाम में लिखा है कि यीशु आपका लहू मुझे तमाम गुनाहों से पाक करता है, मुझे पाक कर, मुझे साफ़ कर, ताकि मैं दिलेरी के साथ प्रेयर में जा सकूं, मैं दिलेरी के साथ जाके बाइबल पढ़ सकूं और गुनाहगारों का खुदा, गुनाहगारों का बाप नहीं है, मेरे गुनाहों को धो दे ताकि मैं आसमानी बाप को बाप कह सकूं दिलेरी के साथ। हालेलुया। अब इबादत, खुदावन ने कहा कि तुम मेरी क्या करना? इबादत करना। पहली बात जो आपने सीखी कि अगर आप जिस्म के कामों में रहें तो आप उसकी इबादत नहीं कर सकते। जब तक हमारी ज़िंदगी, हमारा दिल मुर्दा कामों से पाक नहीं होता, हम जिंदा खुदा की इबादत नहीं कर सकते। सबको समझ आया? आमीन। अब दूसरी बात, इबादत में क्या चीज़ें आती, क्या किसको हम पूरी इबादत कहते हैं? सिर्फ गीत गाना अकेली इबादत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। गीत गाना, चर्च जाना, रोज़े रखना, बीज बोना, दाई की देना, दूसरों के साथ भलाई करना, नेकी के काम करना, मदद करना, मुनादी के काम करना, पास्टर की हेल्प करना, उसके विजन में जुड़ना, सपोर्ट करना, साथ देना, ये सारी चीज़ें आपकी इबादत में आती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ चर्च आते हैं और सिर्फ प्रस्तिश करते हैं या सिर्फ कलाम सुनते हैं या घर में सिर्फ अकेला बाइबल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि मैं इबादत कर रहा हूँ, ये पूरी इबादत नहीं है। गीत गाना इबादत का एक हिस्सा है, पूरी इबादत नहीं। कलाम को सुनना इबादत का हिस्सा है, पूरी इबादत नहीं। पाकीज़गी में चलना, हर एक गुनाह बदी से बचना इबादत का हिस्सा है, लेकिन ये पूरी इबादत नहीं। सिर्फ दही की देना और बाकी कुछ ना करना, ये पूरी इबादत नहीं, इबादत का ये एक हिस्सा है। और जब जो ईमानदार, चाहे वो पासवान है, खादिम है, चाहे वो ईमानदार है, उसके लिए ये ज़रूरी है वो पाकीज़गी में चले, वो खुदा की बादशाही के कामों को सपोर्ट करे, वो अपने पास्टर के विजन में खड़ा हो जाए, उस विजन को अपना विजन समझ के चले, खुदा की बादशाही के कामों को बढ़ाना अपना मकसद समझे, दूसरों तक मसीह की खुशखबरी को लेके जाए, पाकीज़गी में चले, रोज़े रखे, दुआएं करे, पूरी तरह से एक पैकेज वाली लाइफ जो बाइबल कहती है वो जिए, ये है पूरी इबादत। हालेलुया। वो गीत गाने वाला हो, वो कलाम को पढ़ने वाला, कलाम पे चलने वाला हो, ये है पूरी इबादत। और क्या अब आप अपने आप को एग्जामिन करो कि आज हमारी कौम, हमारे लोग या हमारी कलीसियाएं या आप इबादत कर रहे हैं?
जब ये हम देखते इसका मतलब इबादत अभी तक अधूरी है। इसीलिए रोटी और पानी पर बरकत नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ मिसकैरेज है, इसकात है, इसीलिए हमारे यहाँ बांझ है। हालेलुया, हालेलुया। तू क्या करना, तू मेरी इबादत करना, पूरे पैकेज वाली इबादत करना, पूरी तरह से इबादत करना। उस इबादत में सबसे पहले तूने मेरी हैकल मुझे दी हो। इबादत हैकल में होती है ना, तो तुम्हारा बदन जिंदा खुदा की क्या है, हैकल है। लेकिन अगर इस बदन में जो कि खुदा की हैकल है, इसमें अगर मुर्दा काम होंगे तो यीशु मसीह को गुस्सा आएगा। हालेलुया। याद है ना, उसने कोड़ा बनाया था हैकल को साफ करने के लिए, फिर वो कोड़ा बनाता है बीमारी के रूप में, मुसीबत को यूज करता है, बीमारी को यूज करता है। सिर्फ किस लिए? आपको दुख देने और सताने के लिए नहीं, आपको सीधा करने के लिए, ताकि आप उसकी हैकल उसको सौंप सके और इससे हैकल में इबादत हो सके। हालेलुया। तू मेरे घर में ये जो बदन, तेरा बदन जो मेरी हैकल है, तो इस हैकल में मेरी इबादत करना। तो इसमें गीत गाना, बाइबल में लिखा है और रूल कुदुस से मामूर होते जाओ। इफ्सियों में लिखा है कैसे मामूर होना है, अपने दिल में मज़ामीर और रूहानी गज़लें गाया करो। आपस में जमा होने से बाज ना हो, आपस में रूहानी महफिलों में जमा हुआ करो, रूहानी गज़लें गाया करो, रूहानी गीत गाया करो, गैर जुबान में प्रेयर किया करो, ताकि तुम्हारी तरक्की हो। ये तुम इबादत कर रहे हो। हालेलुया। अपने आप को इस हैकल को पूरा 7 डेज इबादत में रखो। सिर्फ संडे इसको इबादत में नहीं लेके आओ। हमें लगता है शायद एक मजमा इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे तालियां बज रही है, कलाम सुनाया जा रहा है, गीत गा, वो इबादत हो रही है वो। लेकिन ये वो वाली इबादत जो बाइबल कहती तुम मेरी इबादत करना, वो ये नहीं कहा संडे के संडे एक मजमे में जाकर थोड़े गीत गाना, नाचना, झूमना, एंड में सीरियस होकर कलाम सुनना, बाद में उसी पर छोड़ के बाइबल बंद करके तो आ जाना, बाकी 6 दिन तेरे। तो आपको लगता है कि आप इबादत संडे को करके आ गए। नो, तू मेरी इबादत कंटिन्यू करना इस हैकल में। मेरा बदन, तेरा बदन जो है वो मेरी हैकल है, और मेरी हैकल खुदा का जो घर है वो किसका घर है? दुआ का घर है। कितनों को याद है, पहले सुन चुके हैं ये कलाम, कि खुदावंद का घर जो है वो किस चीज़ का घर कहलाता है? दुआ का घर। इसीलिए बाइबल कहती है नॉन स्टॉप प्रेयर करो, कंटिन्यू प्रेयर करो, बिला नागा दुआ करो, यानी कि इस हैकल में कंटिन्यू प्रेयर रहे। इससे में लिखे हैं हर वक्त और हर तरह से दुआ करते रहो। जब आप इस लेवल पे आते हैं तो ये आप इबादत की कंडीशन में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि आप इबादत करने की हालत में आते हैं। मैंने अक्सर देखा है अपने भाइयों को कि वो अगर सिर्फ वेस्ट पहनी तो कहते नहीं मैं ये दुआ करनी, मैंने शर्ट पा लें दो। बहनें कहते नहीं दुआ दी हर अच्छी दुपट्टा ले लें दो। एक एग्जाम्पल समझाने की। तो इसी तरह से जब जिस्म के काम हम करते हो और साथ में गीत गा रहे हो, या रात को उठ के दुआ कर रहे हो, या सुबह प्रेयर कर रहे हैं, या बाइबल पढ़ते हैं बिला नागा, पर जिस्म के काम साथ साथ हैं, तो हम दुआ की हालत में नहीं, हम इबादत की हालत में नहीं हैं। इसलिए वो इबादत मेरे रोटी पानी पर बरकत को नहीं लेके आएगी। वो मेरी इबादत मेरे खालिक को मेरी तरफ मुतवज्जा करने नहीं करेगी कि वो अपना हाथ बढ़ाए और मुझे इतना दे के रखने की जगह ना। सिर्फ दायकी देकर अगर आप कहें, बाकी आप सारे जिस्म के काम करें, बाकी आप पूरी तरह से खुदा को ना खुश करें, और अकेला 10वां हिस्सा लाकर आप उससे तवक्को करें कि चल अब इतना दे के रखने की जगह ना हो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। तू मेरी इबादत करना। उस इबादत के अंदर एक पार्ट है, एक हिस्सा है दायकी देना, हुक्मों को मानना। खुदावन ने, अगर आप शरीयत की किताबों को पढ़ो और फिर यीशु मसीह की गॉस्पल्स को पढ़ो, अंजीलों को पढ़ो, खुशखबरी की, उन मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना को पढ़ो और आगे रसूलों के जो लेटर्स हैं उनको पढ़ो, हर एक जगह पर हमें यही मिला है, खुदावंद की पैरवी करो, उसके हुक्मों पर चलो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पुराने अहदनामा में सिर्फ कहा गया हुक्मों को मानो, नए अहदनामा में भी है। अगर आपको लगता है कि आप प्रेयर करने वाले हैं पर आपके पास मदद के लिए कोई आ गया और आपको उससे कहें गॉड ब्लेस यू,
उसे आपका गॉड ब्लेस यू ब्लेस नहीं करेगा। जो आपके पास है उसे वो दो, उसे वो ब्लेस करेगा। याकूब के खत में लिखा है कि अगर तेरे पास कोई नंगा है, मतलब ठंड है और उसने स्वेटर नहीं पहना या उसे नीड है किसी चीज की, और वो आपके पास आए और आप उसे कहें कि मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा या गॉड ब्लेस यू, जीता रह जा, गरम रह, वो कैसे गरम? उसे कुछ दो ताकि वो गरम हो। गॉड ने उसको ब्लेस नहीं करना, गॉड ने तुम्हें ठहराया है ताकि तुम उसको ब्लेस करो और वो गॉड का थैंक्स करे। जब गॉड उसको थैंक्स करते देखेगा तो तुम्हारे लिए और रास्ते खोलेगा। हालेलुया। ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जीते हैं तो हम इबादत करने की कंडीशन में आते हैं। मसीही इबादत इसीलिए बाकी भक्तियों से, इबादतों से डिफरेंट है। हालेलुया। आज तक जो क्रिश्चियन लोगों को यहाँ में लगता रहा कि वो इबादत थी, संडे जी चलो जी इबादत पे चलिए, तो दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हो आओ इस वक्त एक जगह पर कुछ लोग गीत गा रहे हैं या वहां पर कलाम सुनाया जा रहा है, आओ वो कलाम सुनने और वहां पर जाकर गीत गाने के लिए चलें, जबकि वो सिर्फ उस इबादत का जो खुदा आपसे तवक्को करता है, वो गीत गाना, वो कलाम सुनना उसका एक हिस्सा है, वो पूरी इबादत नहीं है। आप कहते इबादत अटेंड करके आ गए हैं आप। हालेलुया। किसको समझ आ रही है? हालेलुया। तो ऐसी इबादत जब आज तक की नहीं तो फिर रोटी पानी पर बरकत की तवक्को सिर्फ लिए बैठे हैं। इसीलिए वो बरकत, वो आसमान के सोतों का खुलना, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। दाई की दे रहे हैं और इस चीज़ के लिए दे के 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। हुण पास्टर झूठा लगन लग गया, वो तो कहता सी इंज होएगा, वो तो कहता सी उंज, कुछ होन ते नहीं दिया। बीज बोवो, ये होगा वो होगा, कुछ हो तो नहीं रहा। अब तुमने बीज तो बो दिया, दाई की भी दे दी, पर वो कहता है कि तेरा बदन भी मेरी हैकल है, इसमें इबादत होनी चाहिए, वो नहीं आप कर रहे। आप गाली दे रहे हैं, आप मुखालफत कर रहे हैं, अभी भी जिस्म के कामों में, अभी भी आपका दिल मुर्दा कामों में फंसा हुआ है और आप जिंदा खुदा की इबादत कर ही नहीं रहे। आप सिर्फ उस इबादत का 1-2 हिस्से पूरे कर रहे हैं, एक दाई की दे रहे हैं या बीज बो रहे हैं या चर्च में जाके गीत गा रहे हैं या संडे से चर्च जा रहे हैं, आप इबादत थोड़ी ना पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए अगर हम पूरा होमवर्क नहीं करते और खुदा से कहते हैं खुदावंद कर तेरे कलाम में ये लिखा हो, कहते हैं हाँ मुझे पता है ये लिखा हो, अब मैं चाहता हूं तू भी थोड़ा सा जाने के क्या क्या लिखा हो। जरा गौर से पढ़ कि खरूज में क्या लिखा है, तू मेरी इबादत कर। इबादत क्या है? लिखा है इब्रानियों में, क्या लिखा है कि तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से पाक करेगा। जब मसीह का खून तुम पुकारोगे, अपने ऊपर लोगे, उसे पुकार कर अपना आप उसके आगे रखोगे, क्या यीशु नासरी के लहू, ऐ पाक लहू मुझे पाक कर। जब तुम पाक होने के बाद पाकीज़गी में चलोगे, जियोगे और पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, तब तुम जिंदा खुदा की इबादत करने के लायक बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज आप इबादत करना सीख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों 4 बाब उसकी 16 आयत देखो, और 10 बाब और उसकी 19 आयत को नोट करें। इब्रानियों 4 की 16। इब्रानियों 10 बाब 19 आयत को पहले पढ़ेंगे। लिखा पस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान यानी कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने की दलेरी है। बिना यीशु मसीह के लहू के कुछ भी नहीं। आप जानते हैं जब मैं और आप खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमारे ऊपर यीशु के लहू को देखता है। बिना यीशु के लहू को ऊपर लिए आप खुदा के तख्त के पास आ भी नहीं सकते, या मैं या कोई भी मसीही, कोई भी शख्स यीशु का लहू अपने ऊपर लिए बिना खुदा के तख्त के पास आ भी नहीं सकता, वरना वो तबाह हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा।
कितनों को बात समझ आई? तो अब आपको आज सीखना है कि यीशु का लहू हमारे लिए कितना कीमती है, ये कितनी अहमियत रखता है। बिना लहू के माफ़ी नहीं, बिना लहू के छुटकारा नहीं, बिना लहू के हम पाक साफ नहीं होते, और जब पाक साफ नहीं होते हमारी इबादत किसी काम की नहीं। हम अपने खुदा को खुश कर ही नहीं सकते, हम उसके तक के पास जा ही नहीं सकते, कह लो कि अलाउ ही नहीं है। सुनो फिर से देखो, बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, सब मेरे पीछे बोलो, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। किसकी वजह से? यीशु के खून के वजह से। यीशु मसीह के बहाए सलीब पर बहाए लहू के वसीला से मुझे और आपको उस नई इंसानियत में चलने के लिए, नई राह पर चलने के लिए, आसमान की बादशाही पर जो ट्रैक, जो सफ़र हमने शुरू किया है, उस नए सफ़र पर चलने के लिए हमें यीशु का लहू चाहिए। और बिना यीशु मसीह के लहू के हमारे पास दिलेरी ही नहीं है कि हम खुदा की तरफ दौड़ सकें, खुदा के तक के पास आ सकें और उस नई राह पर चल सकें। ये यीशु का लहू ही अजीज़ों जो मुझे और आपको दिलेरी देता है कि हम खुदा को बाप कह सकें और खुदा की राह पर चल सकें और उसके तख्त के पास आ सकें। हालेलुया। इब्रानियों 4:16 पढ़ो, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, क्योंकि हम उसके लहू से धुल चुके हैं, हम पाक हो चुके हैं। यीशु ने अपने लहू से हमें धो के पाक और साफ कर दिया। अमाल की किताब में लिखा है कि खुदा ने कलीसिया को, अपने लोगों को अपने बेशकीमत लहू से मोल ले लिया, यानी कि खरीद लिया। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप आम नहीं हैं, आप खासुल खास हैं, क्योंकि आपके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। और जो कोई आपको कहे तू कुछ नहीं, वो झूठ बोलता है और उसमें से शैतान बात करता है आपको मायूस करने के लिए और झूठ पर कान लगाने के लिए, जबकि आप बहुत ख़ास हैं, क्योंकि आपके लिए कीमत दी गई है और वो कीमत खुदा के अपने कीमती लहू की है, उसके बेटे यीशु के लहू की है। हालेलुया। तो रसूल कहता है कि अब यीशु के लहू से धुलने के सबब से हमें क्या हासिल हो गई है? दिलेरी मिल गई है। मुझे दिलेरी हो गई कि मैं पाक हो चुका, हाँ मैं जा सकता हूँ। हालेलुया। कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है, गलती की हो आपने, उसके बाद रो के, चिल्ला के, मुंह से बोल के माफ़ी मांगी हो और उसके बाद आपने लहू को पुकारा और एक अलग सी दिलेरी आपकी, उसके बाद आपने गैर जुबान में प्रे की हो? किसको ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है? हालेलुया। तो वो दिलेरी जो मैं बोल रही हूँ, इन लोगों ने एक्सपीरियंस की है जिन्होंने ऐसा किया जो मैं बता रही हूँ। आप कर सकते हो। जब गलती हो जाए जाओ माफ़ी मांगो, पुकारो यीशु के लहू को, पहले पूरी तरह से खुल के इकरार करो, फिर मांगो यीशु का लहू और कहो मुझे धो के पाक साफ करो, और उसके बाद फ़ौरन प्रे में चले जाओ। और फिर आप देखना, आप दिलेरी से दुआ कर पाओगे, आपके अंदर एहसास जुर्म नहीं आएगा। हालेलुया। तो यही रसूल कहता है, बस आओ हम फजल के तक के पास दिलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो। क्या हो? हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। आओ हम कहाँ चलें? फजल के तक के पास, ताकि हमें दिलेरी मिले और अब नई मखलूक होकर यीशु के लहू से धुलकर जब आप फजल के तक के पास जाते हैं तो आप पर रहम किया जाता है। खुदा अपने आपके ऊपर अपने बेटे के लहू को देखते हैं। हम कहाँ इस लायक थे? हम तो पापी थे, गुनाहगार थे, गुनाह में, नापाकियों में पड़े हुए थे, तो वो हमें क्यों देखे? वो तो देखते अपने बेटे यीशु के लहू को देखते हैं। और जब हम यीशु के लहू को पहन कर या उससे धुल कर बाप के पास आते हैं तो वो हमें भी देख लेता है, तो वो फिर हम पर अपना रहम करता है। और जब वो रहम करता है तो उसके रहम से हमें ग्रेस मिलती है, रहम से हमें फजल मिलता है। वो कौन सी ग्रेस, कौन सा फजल? हर एक चीज़ में हमें मदद मिल सके। आप सुनो इसको फिर से और समझो। लेकिन आओ हम, बस आओ हम फजल के तक के पास दिलेरी से चलें, यानी कि यीशु के लहू से धुल के चलें, ताकि हम पर रहम किया जाए। और वो फजल, वो ग्रेस जो मुझे प्रेयर में बढ़ने के लिए चाहिए, जो मुझे मायूसियों से बाहर आने के लिए चाहिए, जो मुझे गरीबी से बाहर आने के लिए चाहिए, जो मुझे वफादारी में चलने के लिए चाहिए, जो मुझे अधीन होने के लिए चाहिए, वो ग्रेस जो मुझे
कुदरत वाले काम करने के लिए चाहिए, वो ग्रेस जो मुझे असरदार दुआएं करने के लिए चाहिए, वो ग्रेस मुझे मिलेगी हर एक चीज में। लिखे ताकि तुम पर रहम हो। जब रहम होगा तो आपको वो ग्रेस मिल जाएगी जिसके लिए आप प्रेयर करते हो और आप कोशिश करते हो, मैं ये कर नहीं पाता, मैं रोजे रखना चाहता पर मैं कर नहीं पाता, फिर आपको वो ग्रेस मिल जाएगी जो आप चाहते हैं कि आप बढ़ने के लिए, आप ग्रोथ कर सके। किसको समझ आ रही है? जब रहम होता है तो ग्रेस आती है। पहले लहू से धुलते हैं, फिर हम फजल के तक के पास जा पाते हैं, और जब चले जाते हैं तो जब हम धुले होते हैं हम पर रहम होता है, और वो रहम हमारे लिए ग्रेस को लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो रहम हमारे लिए ग्रेस को लेके आता है, फिर हमें ग्रेस हासिल होती है। लिखा है जो ज़रूरत के वक्त, यानी कि जो भी आपकी नीड है, आपकी नीड ये हो सकती है कि आप ईमान में बने नहीं रहते, पर आपको ईमान में बने रहना चाहिए, तो आप बने नहीं रहते, तो वो ग्रेस आपकी मदद करेगी ताकि आप ईमान में मजबूत हो सके, आप ट्रबल से, मुश्किल से बाहर आ सके। वो ग्रेस आपकी मदद करती, तो वो फजल हासिल करे जो ज़रूरत के वक्त हमारी क्या करे, मदद करे। हालेलुया। हर एक हिस्से में ग्रेस आपको निकालती, इसीलिए कहते हैं ना कि आपको ग्रेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ग्रेस चाहिए बढ़ने के लिए। आपको बिला नागा चर्च आने के लिए ग्रेस चाहिए, आपको हर रोज़ दुआ करने के लिए ग्रेस चाहिए। आप जानते हैं आपको हर रोज़ सुबह उठकर ये कहना है, ऐ खुदावंद आज का तेरा फजल मुझे दे, आज की ग्रेस मुझे आज दे। हालेलुया। हर दिन की एक अलग ग्रेस है, हर दिन आपको एक नया फजल खुदा देता है, हर दिन एक नई दया आप पर होती। आज का तेरा रहम मुझ पे कर खुदावंद, आज की तेरी ग्रेस आज मुझे दे, आज की मेरी रोटी यानी कि आज का कलाम आज मुझे दे। और शायद आप सिर्फ संडे चर्च में ही आप मांगते हो क्या खुदा मुझ पे फजल कर, मुझ पे रहम कर, जबकि आपको हर रोज़ की ग्रेस मांगनी। हालेलुया। जब लहू से धुलेंगे, तख्त के पास आएंगे, वो आप पर रहम करेगा। जब रहम करेगा तो वो साथ आपको ग्रेस देगा, आपकी मदद करेगी वो ग्रेस हर एक हिस्से से बाहर निकलने के लिए। आप कहते हैं रोज़े की चर्च में कॉल आती है पर मैं नहीं रख पाता, आप वो ग्रेस आपकी मदद करेगी ताकि आप रोज़े रख पाएँ। जब रोज़े रखेंगे आप अपने शरीर पर, अपने जिस्म पर गालिब आएंगे तो आप खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे। शरीर का, जिस्म का कब्ज़ा टूट जाएगा, जिस्म के कामों का कब्जा टूट जाएगा जब आप रोज़ों में जाएंगे। लेकिन रोज़े तो रखे नहीं जाते ना, तो उसके लिए आपको ग्रेस चाहिए। वो ग्रेस मिलेगी जब आप पर रहम किया जाएगा। रहम होगा जब आप तख्त के पास जाएंगे। तख्त के पास बिना दलेरी के तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए यीशु का लहू चाहिए। हालेलुया। तब मैंने बैकवर्ड काउंटिंग की तरह आपको पीछे लेके आई। हालेलुया। याद हो गया? हालेलुया। आज मेरा दिल कर रहा है मैं आप के पास जाके पूछूं कि किसको समझ आई है, क्योंकि जब ये समझ आएगी तो हम इबादत करना सीखेंगे। इबादत करेंगे तो हमारे मसलों के हल होंगे। हालेलुया। जब इबादत करेंगे हमारा खुदा हमसे खुश होगा तो कुछ रिलीज़ करेगा ना आसमान से। लेकिन करें कैसे जब तक मालूम नहीं, करें कैसे जब तक हमें समझ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से अपनी आंखों को बंद करो और इस वर्ड को जो मैं पढ़ूंगी इसको अपनी रूह में उतारो। बस आओ हम फजल के तक के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें। इसका मतलब खुदा चाहता है कि आप फजल को हासिल करें, आप ग्रेस को हासिल करें। जिन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे उन चीज़ों से निकलने की ग्रेस हासिल करें। आपको लगता है मेरे हालात बहुत माड़े ने, मैं बीज नहीं दे सकता, मैं दही की नहीं निकाल सकता, तो आपको ग्रेस चाहिए हुक्मों पे चलने के लिए, हर एक काम को करने की ग्रेस चाहिए। तो कहता है हम चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को कलाम समझ में आ गया है? आमीन। तो मेरा ईमान है कि आज के बाद जब समझ आ गया तो इबादत कर पाएंगे। जब इबादत करेंगे तो सब कुछ सिद्ध होता जाएगा, बिगड़ी चीज़ें अपने आप सीधी होती जाएंगी। हालेलुया। इस्तिश्ना की किताब 28 बाब को घर जाके अगर आप पढ़ो तो वहाँ लिखा जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तेरी औलाद अपने आप तेरे ताबिया होगी, तेरे चौपाए ब्लेस होंगे, तू घर आते बाहर जाते तू मुबारक होगा।
हालेलुया। जब तू मेरी शरीयत मुझे फॉलो करेगा तो तू जहाँ भी हो तू ब्लेस होगा, तेरा आना जाना उठना बैठना सब कुछ ब्लेस ही होगा। हालेलुया। यूसुफ से उसके मालिक ने, जो गैर ईमानदार था, गैर मसीह था, उसने क्या कहा, मैंने ये नोट किया है, तू जिस काम को हाथ लगाता उसमें बरकत आती। वो हुक्मों पे चलने वाला एक इंसान था, इसीलिए वो अंदर आते बाहर जाते नौकर होते भी वो ब्लेस था। हालेलुया। वो जिस भी आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से पर क्यों नहीं हो, आप क्लीनिंग का काम करते हो या आप अफसर हो, कुछ भी हो, आप जिस जगह पर होंगे आप ब्लेस ही होंगे। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे बरकत आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि आप इबादत करने वाले हैं और आपके ऊपर ये वादा है, आपके ऊपर ये खुदा ने बरकत दी है कि तू मेरी इबादत करेगा, जहाँ तू जाएगा तू ब्लेस हो। लेकिन अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा तो तू कुछ भी कर ले, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, डिग्रियां जितनी मर्जी हो, उन्हें जंग लग जाएगा, चिपक जाएंगी आपस में भर के और तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। हालेलुया। तेरी डिग्रियां तेरे कोर्स कुछ किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि तूने मेरी इबादत नहीं की, तूने मेरे कलाम को नहीं जाना, तूने मेरे हुक्मों को तोड़ा रौंदा। इसीलिए वो सब चीज़ें तेरे पीछे पड़ेंगी और तुझे तेरा तब तक लिखे तुझे फॉलो करेंगी, वो बीमारियां वो कर्ज, जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और इसी तरह अगर तू मेरे पीछे चलेगा, मेरी इबादत करेगा, मेरे हुक्मों को फॉलो करेगा, तो तेरे पीछे ब्लेसिंग्स भी पड़ी रहेंगे जब तक तुझे इस ज़मीन के ऊपर एक टॉप लेवल का एक ब्लेस्ड पर्सन ना बना दे, तब तक वो चीज़ें तेरे पीछे पड़ेंगी, जब तक तो एक टॉप लेवल पे एक कह लो कि ब्लेस्ड क्रिश्चियन ना बन जाए, दूसरों के लिए असरदार ना तू बन जाए। तेरा असर जब तक दूसरों पर पड़ने ना लग जाए, हर एक ब्लेसिंग हर एक बरकतें अपने आप तुझे फॉलो करेंगी। जैसे मकनातीस खींचता चीज़ों की अपनी तरफ, तो अपने आप बरकतों को खींचेगा। हालेलुया। जब हम इस तरह से चलते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और ऊंचे होने के लिए फिर जोर मारने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, अपने आप जोर मत लगाओ। तुम क्या करो, सिर्फ और सिर्फ तुम डाली हो, मैं दरख्त हूँ, तुम डालियाँ मुझसे जुड़ जाओ तो अपने आप फल लाओगी, अपने आप तुम्हारी ग्रोथ होगी। हालेलुया। मुझ में कायम हो जाओ, मेरे साथ पेवस्ता हो जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, तो तुम्हें खुद से फल लाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तुम अपने आप ब्लेस होगे, तुम अपने आप फल लाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपने ये जाना कि यीशु का खून आपके लिए और मेरे लिए कितना कीमती है। हम इसी लहू से खरीदे गए हैं। यही लहू हमें फजल के तक के पास आने की ग्रेस देता है। यही लहू हमें धोता है, पाक करता है और हमें इबादत करने के लायक बनाता है। हालेलुया। अपने सरों को झुका लो।